सेकंड आप दीजिएगा आवाज Yeah, को पहुंचने के लिए। yeah. Assalamu alaikum, Adab. Very good evening to all of you. How are you all today? Welcome to the fourth episode of Converse with KS. And we have one of the most special guests that we could ever invite, Amar Iqbal Saab. Amar Iqbal Saab, tahe dil se istiqbal karte hain. Very good evening and welcome to Converse with KS. Thank you so much for accepting our invite. वालेकुम सलाम, आपकी बंदा नवाजी। आपने इस लायक समझा, मैं हाजिर। हम हमेशा की तरह जो है ना एक इंट्रोडक्शन जरूर कर देते हैं क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन करना बहुत बहुत जरूरी भी है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू अमार इकबाल साहब। Amar Iqbal Saab is a dynamic poet and a literary force who seamlessly captures the aesthetic essence from ghazals to nazms. He is a seeker of lost values, preserves them through his expressions, which is untainted by rhetoric. His ghazals showcase artistic prowess while nazms reveal meticulous craftsmanship, defining him as an amazing poet. He ventures into uncharted territory by introducing pronets, which is a new genre in Urdu poetry, gaining popularity among amateurs and new writers of Urdu poetry. He embarked on his literary journey in 2015 with Parindagi, which received widespread acclaim. With 10 books spanning philosophy, fiction, poetry, he is unstoppable. Some of his books are Parindagi, Manjuru, Pronet, Ajnabi, Margistan, and many, many more. And I'm sure that he is going to write a lot more. Now, he speaks on various topics that has intrigued me, and that is why I thought that he is an apt person to have as a guest on our show because Nurture Life Presence Converse with KS, we are always talking about social impact. We are talking about mental wellness, mental well-being. We are talking about the impact that we as poets or literary people or entrepreneurs or even as human beings we can have on the society. And he speaks on topics like psychology. Very recently, speciesism on applause adabs, applause. I think it is called applause with Amar Iqbal, and अपलॉज there is a अदब very विद nice show. अमान। He speaks on uh, and he speaks on mental health. He speaks on spirituality, and he speaks about Urdu itself as a language and Urdu poetry. So welcome Amar Saab. Thank you so very much. और आपको कोई स्टार्ट लेना हो तो बताइए। टुडे वी आर गोइंग टू बी रिवीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू एंड अ वेरी स्पेशल थिंग दैट द वर्ल्ड डज नॉट नो इन बिटवीन द प्रोग्राम। सो आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहेंगे आज के आप यहाँ हैं? आई वुड नहीं जी, डेफिनेटली बस लाइक टू बाकी तमाम जो अहम चीजें हैं वो तो आपने पहले ही जिक्र कर दिया। और इतने बड़े तारुफ के बाद खुद मैं मुश्किल में आ जाता हूँ कि न जाने इन तवक्कात पे मैं पूरा उतर पाऊं कि नहीं। तो आपकी जर्रा नवाजी, बंदा नवाजी हाजिर में। थैंक यू। तो आज जो है एक गुजारिश ये होगी कि बिल्कुल आप उर्दू अदब के जो है ना एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्स हैं, मगर व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्चुअली बी बिटवीन बोथ आई थिंक इंग्लिश एंड उर्दू बिकॉज बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर ज्वाइनिंग अस, ग्लोबली ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग शायद उर्दू नहीं जानते हो और उनके लिए भी मेरे ख्याल से जो ना आपकी बातें बहुत ही अहम है मैं हाजिर, बिकॉज आप जिस कोशिश करता, गहराई से बात, ठीक है, कोशिश आई करता। विल बी डूइंग बोथ बिकॉज आई नो यू स्पीक वेरी वेरी गुड इंग्लिश हाँ हाँ, मर्जी मर्जी आपकी, उनके लिए भी क्या को जुबाने यारे मन तुर्की न मन तुर्की नमी दानम, ये है, लेकिन हम बिल्कुल। कोशिश करते हैं। यस, फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट इज poetry itself, the depth with which you write, how and when did this particular journey start? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 2015 कहता है, मगर मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत पहले से लिखते जा रहे हैं और ये जो गहराई है आपकी बातों में, कहते हैं कि इट इज नॉट जस्ट द वर्ड्स बट द साइलेंस बिहाइंड द वर्ड्स दैट मैटर।
उसके बारे में प्लीज सर आप बताइए। जी, ये यानी अक्सर उमूमन ये सवाल होता है, इसको मज़ीद मतलब कि वाज़ेह करके लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि आपने शायरी कब से शुरू की? तो उमूमन मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि मैंने शायरी कोई पैदाइश से 2-4 माह पहले से शुरू कर दी थी। लेकिन बाकायदा जो मैंने यानी लोगों के सामने आया या बाकायदा लिखना शुरू किया, वो आप वक़्त समझें 2010 का, कि 2010 में फिर उससे पहले भी शौकिया तो लिखते थे, मगर फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, आदमी को जब शौक होता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। 2010 में हमें एक उस्ताद मुयस्सर आए कि जिन्होंने शायरी की जो टेक्निकैलिटीज़ हैं उनसे हमें रोशनास कराया। कुछ न कुछ तो आदमी के अंदर पहले से मौजूद होता है, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत होती है। तो नईम गिलानी साहब जी सर। हमारे उस्ताद हैं और उन्होंने फिर मुझे उर्दू के मीटर्स, उरूज़ वग़ैरह सिखाए, शायरी की मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई। तो आप समझें कि बाकायदा मैं 2010 से लिख रहा हूँ और उससे पहले शौकिया तो पढ़ने-लिखने का जो ताल्लुक है, वो तो पैदाइश से पहले का। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि यू नेवर बिकम अ पोएट ओवरनाइट बट यू मस्ट हैव बीन अ पोएट इन योर पास्ट लाइफ। जी हाँ। दैट्स व्हाट आई बिलीव, हाँ, 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 हाँ। राइट? है ना? सो ऐसे ही। आपने एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसमें आपने कहा था कि पोएट्री एंड its influence on mental health and well-being. You spoke about poetry being used for the prevention of suicide, and I found that very interesting. जी So, हाँ। please shed some वो light ये on था that. कि दुनिया भर में तो मुख्तलिफ रिसर्चेज़ इस हवाले से हो रही थी। उर्दू में मुझे लग रहा था इस बात की ख़ासी कमी है। तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू एक जगह मैंने रिकॉर्ड की, कुछ रिसर्चेज़ को कोशिश ये किया कि वही पैटर्न्स हम उर्दू शायरी पर अप्लाई करें, तो यकीनन हमें मतलूबा वही नताइज निकलेंगे। बल्कि इस रिसर्च को मज़ीद मैं इस लफ्ज़ सुसाइड से बचना हम चाह रहे थे। और बाकायदा अगर कोई टीम मयस्सर हो, कुछ इदारे मयस्सर हों कि बहुत सारी चीज़ें एक अकेले आदमी का काम नहीं होता, स्पेशली रिसर्च वर्क में, तो अगर बाकायदा ये काम किया जाए तो इट कैन आल्सो प्रिडिक्ट डेथ। इसकी जो मैं अगर बात को एनकैप्सुलेट करके इस हैरत को कम करना चाहूँ कि बज़ाहिर ये दावा कितना बड़ा है कि शायरी से मौत की पेशेनगोई की जा सकती है। लेकिन क्या हम नहीं देखते बारहा हमने अक्सर सुना है, जब हमारे बुज़ुर्ग हमें छोड़ के जा रहे होते हैं, तो कहते हैं फिर हमें बातें याद आती हैं, यार 4 दिन पहले उन्होंने ऐसा कहा था, यानी कि उन्हें इल्म था। यार 1 महीना पहले उन्होंने ये बात की थी, यानी कि उन्हें इल्म था। अच्छा इसके अलावा इसको आप साइंटिफिकली देखें, तो डॉक्टर भी प्रिडिक्ट कर देता है। कहता है कि अब 6 दिन आपके पास हैं, अब 8 दिन आपके पास हैं, यानी कि कुछ फिज़िकल सिम्पटम्स जब मौजूद होते हैं, तो उन फिज़िकल सिम्पटम्स को सबसे पहले कौन पढ़ सकता है? सबसे पहले आपका अपना दिमाग पढ़ सकता है। दिमाग में झाँकने की जो सबसे अच्छी खिड़की आपके पास है, वो शायरी है। ये ख्वाब की तरह है। आपका पेट भी खराब होता है ना, तो आपको सबसे पहले ख्वाब बुरा आता है। उसका असर आपके ख्वाबों पे होता है। अच्छा पोएट्री में आपके इस मामले में किताब आप वो ड्रीम साइकोलॉजी फ्राइड की बड़ी अच्छी एक किताब है, उसको पढ़ें, तो उसमें ड्रीम इंटरप्रिटेशन के हवाले से काफ़ी काम है। तसव्वुफ़ में ख्वाबों की ताबीर जानने के हवाले से काफ़ी काम है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला के देखें, तो आप देखें कि इनकी सिम्बलाइज़ेशन कितनी ज़्यादा मिलती-जुलती है। जो चीज़ें साइकोलॉजिकली ख्वाब में जो अलामतें बयान हुई हैं, वही अलामतें आपके तसव्वुफ़ में स्पिरिचुअली बयान हुई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर जोड़ा जाए और वो रास्ता, वो खिड़की शायरी को बनाया जाए, तो बहुत कुछ हम पर इंसानी नफ्सियात की ऐसी गिरें खुल सकती हैं, जो न सिर्फ़ माज़ी बल्कि मुस्तक़बिल में झाँके। ये बल्कि अभी बात मैंने कोट कर दी, तो ये फ्राइड का ही जुमला है कि मैं इंसानी नफ्सियात की जिस भी राज़ तक मैं पहुँचा मेहनत करके, मैंने एक शायर को खुद से पहले वहाँ खड़ा पाया। और यही वजह और अच्छा एक ये बात इस बात को मज़ीद
अगर हम और मैं प्रिसाइज कर लेता हूं तो उर्दू शायरी का जो तुर्रा इम्तियाज है वो है गजल। गजल की फॉर्मेशन ऐसी है कि जितना सबकॉन्शियस एक्सप्रेशन आपको गजल देती है ना, उतना सबकॉन्शियस एक्सप्रेशन आपको पोइट्री की कोई भी फॉर्म नहीं देती। लेकिन अब जब आप यहाँ देखते हैं, हिंदुस्तान में भी यूनिवर्सिटीज में, तमाम इदारों में, दीगर मुमालिक में भी जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है, अगर कोई पीएचडी कर रहा है गजल पे तो वो किसी फलाना साहेब पे करके बैठा होगा, तो वो किसी दौर पे करके बैठा होगा, तो वो किसी बहुत ट्रेडिशनल चीज पे करके बैठा होगा। हालांकि मार्जिन इतना है जो सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ चंद चीजों की निशानदेही करके मैंने बताया। Correct, correct. So dream interpretation is extremely important, and when poetry is written based on this, you can actually tell that the person is probably suicidal or not. And जी हाँ, that is basically what the encapsulated means, that we can actually predict suicide or predict somebody's depression through their poetry or through their writings. देखिए, और इस हवाले से इवन हमारे अदब में हमारे पास बहुत वाज़े एक माजी का वाकया और एक मिसाल मौजूद है। हम उस मिसाल को भी शायद उतनी गहराई में नहीं देखते कि जब मिर्जा सौदा ने एक नौजवान का शेर पढ़ा, वो शेर बड़ा मारूफ है। इस घर को आग लग गई, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और उसके बारे में जो उस्ताद शायर था उसने प्रेडिक्ट कर दिया। अब इस सिर्फ उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ज्यादा देर ये नौजवान हमारे दरमियान नहीं रहेगा, और फिर लोगों ने देखा कि ऐसा ही हुआ कि उस नौजवान का इंतकाल हो गया। लेकिन इस वाक़े का पर सिर्फ आपको हैरान होने की बजाय, सिर्फ इस वाक़े का मजा लेने की बजाय, अगर आप सोचना शुरू करें कि उस उस्ताद ने किन बुनियादों पर ये पेशगोई की, तो यकीनन आप किसी न किसी, चाहे गलत लेकिन किसी न किसी नतीजे तक तो पहुंचेंगे। तो इस हवाले से रिसर्चेज होनी चाहिए उर्दू शायरी पे, खासकर उर्दू गजल पे। वेरी मच। अब हम आते हैं लिटरेचर, रीडिंग एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन यूथ। बिकॉज मैंने ये देखा है कि आपने ऐसे ऐसे बुक्स को ट्रांसलेट किए हैं जो साइकोलॉजी के जो है, दे आर कंसिडर्ड huge influences on psychology. For example, Kafka's Metamorphosis. Oh, one of my favorites. And I saw that you have actually translated it into Urdu and encapsulated it into a 39-minute audio on your YouTube. Now, Kafka's Metamorphosis is a book for anybody who wants to read on psychology and abnormal psychology, schizophrenia, these kind of things, you know. And वो किताब जिस तरीके से लिखा गया है और उसका जो ट्रांसलेशन, तर्जुमा करके, the way you have translated it and presented it into a 39-minute capsule, how did that happen? How did how were you able to transform a book that is written by Franz Kafka, Metamorphosis, into a 39-minute capsule? Please tell us about that. इसमें सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस तरफ तवज्जो दी और इस चीज को देखा। दूसरा, उसमें सबसे पहले मैं अपनी नीयत बताऊं कि मेरी इसमें नीयत क्या थी। कीट्स की लाइन बहुत मशहूर है इस हवाले से, जिसको मैं निगेट करना चाहता हूं। कीट्स की लाइन है कि जो कुछ तर्जुमे से रह जाए वो शायरी होती। कहता है कि वॉट एवर दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, वो शायरी होती है। हालांकि जो मेरे पास शायरी की डेफिनेशन है वो ये है कि इट एड्स समथिंग टू योर एक्सप्रेशन। भाई, ये आपके इजहार में इजाफा करती है, तो ये कोई चीज छोड़ेगी या किसी चीज का रस मजीद बढ़ा देगी। अब अगर आपके सामने जितना मेरा हौसला है, जितना जो भी मेरा स्किल सेट है, उसके मुताबिक एक कहानी को, एक ऐसी कहानी को जिसके बारे में नोबेल अवार्ड याफ्ता मार्कीज ने कहा कि जब मैंने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा उसके बाद से मैं सारी जिंदगी चैन की नींद सो नहीं पाया। मेरी कोशिश ये थी कि उसको मैं अपनी जबान में, उर्दू जबान में ढालूं
और ढाल के आपके सामने रखूं और आपके सामने रख के पूछूं कि क्या इसमें कोई कमी नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि इसमें काफका का रस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? अगर ज्यादा होता हुआ महसूस हुआ है तो इसका मतलब है मेरी जबान में तो कोई कमी नहीं। एक तो ये उसका हासिल निकला मेरे पास। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप तराजिम करते हैं तो एक डिबेट रहती है यूनिवर्सैलिटी की, आफाकियत की, कि आप अपने ट्रेडिशन से ज्यादा जुड़े रहते हैं तो फिर आप आफाकियत खो देते हैं, यूनिवर्सैलिटी खो देते हैं। जब आप उस तरफ जाते हैं तो फिर एन मुमकिन है कि बेतहाशा मगरिबियत उसमें आ जाए, बेतहाशा ट्रेंड्स आ जाए। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कायनाती तौर पे, जो तमाम तौर पे यानी कि इंसानों में भी और हैवानों में भी एक जैसी हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर उसी कहानी में कहीं कहीं रिश्ता है बेटे का बाप के साथ। अब वो जो, क्या ऐसा है कि हम जो हैं एशियन लोग, उनके लिए बाप का दर्जा ज्यादा है और एक जर्मन के लिए बाप का दर्जा कम है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। काफका की आम जिंदगी पे देखें, वो तो कब से चल रहा है ना। आप सोफोक्लस का ओडेपियस रेक्स पढ़े, वो तब से मामला चल रहे हैं और उसको फिर साइकोलॉजी ने भी टर्म उस कहानी से कर दिया है, जिसको आप ओडीपस या ओडेपियस प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला नहीं है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब उसमें यानी मिसाल के तौर पर उस कहानी में एक जगह आता है तो वो तो चूंकि बेटा कीड़ा बन चुका होता है, वो कीड़ा बन चुका होता है तो अपने आम हालात में तो वो दीवारों पे चढ़ रहा होता है। लेकिन वो बाप का अदब करते हुए वो क्या कहता है कि वो दीवार पर चढ़ने की नामाकूल हरकत से वो खुद को बाज रखता है। वालिद का अदब एक कीड़े के लिए ये होता है कि यार मैं इनके सामने दीवार न चढ़ूं। तो इस अब ये चीजें हमारे ट्रेडिशन की हैं। तो बयान करने का मकसद ये है कि दो मकासद थे। एक तो मकसद ये है कि आप इनलाइन रहें आलमी अदब के साथ, जो आपको पता तो चले कि बारात कहाँ जा रही है, आप उसी महबूब की जुल्फों के खम में न उलझे रह जाएं। एक ये, और दूसरा ये है कि उसमें मैं आपके लिए ये एक्सक्यूज नहीं छोड़ना चाह रहा कि उर्दू में गुंजाइश नहीं है। भाई गुंजाइश है। आपको अगर लगता है कि गुंजाइश नहीं है तो ये रही नज्म, आप मुझे साबित करके बताएं कि इसमें से कमी क्या रह गई है काफी की कहानी और इस नज्म। I think one of the most important things मैं जो बोलती रहती हूँ कि हर लैंग्वेज में एक खासियत है, and every language has a specialty and we can उस पे अबूर जो है ना पाना आसान शायद नहीं होगा because it depends on how we come from a cultural background, but it is not impossible at all. बिल्कुल। अब जो है मैं ये इस पर्टिकुलर बात पर, बिकॉज आई नो दैट you live a very principled life and you believe in principles. How important is it to have a principled life for a human being? Because you are a philosopher and you are into psychology and you are into human relationships. When I was listening to you on speciesism, one of the most important things that we were talking about is relationships and the principled life. The principled life, how important do you think a human being needs to have and principles to be able to be a better human being? तू के नावाकिफ़े आदाब गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। क्या बात है, बात माशाअल्लाह। जनाब, बात ये है कि इस लफ्ज को भी हम अपने ऊपर तारी न करें, लफ्ज प्रिंसिपल को हम अपने ऊपर तारी न करें, इन चीजों को हम अपने ऊपर तारी न करें। लेकिन बकौल कामियों के उस फलसफी पर मैं लानत भेजता हूं कि जिसके नजरियात उसकी जिंदगी पे असरअंदाज नहीं होते। जब आपके नजरियात आपकी जिंदगी में नजर नहीं आ रहे, जब आप मुजस्सम मजमुआ नहीं है उन बातों का जो बातें आप कर रहे हैं, तो ना आपकी जिंदगी बामकसद रह पाती है और ना ही आपके नजरियात बामकसद रह पाते हैं। और इनमें सबसे मजे की बात यह है कि ये इन चीजों को बामकसद कहने के लिए जिस शख्स को मैंने कोट किया उसकी सारी बहसी एब्सर्डिटी पे है, बेमकसदियत और लायानियत पर है।
तो आप बस इससे अंदाजा करें आप इस बात से। So walking the talk is something that is very important. जी हाँ। मैंने एक चीज बहुत मैंने सीखा है मेरे उस्तादों से, मेरे गुरु से, मेरे अम्मी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी और का बनते हो, किसी और का ना बन तो बन, मत बन मगर अपना तो बन। रीड योर ओन बुक एट तू लीस्ट। अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। Correct. Figure at least yourself out and figure out who you are and what your purpose on in this world is. So when we are talking about along these lines, मैं ये कहूंगी कि अकाउंटेबिलिटी इन यूथ, यानी कि ये तरबियत में जो है ये पैदा करना कि ये जो हमारे जो जवान बच्चे हैं, जो हम बच्चों को जब पालते हैं तो उनको हम अकाउंटेबल बनाएं उनकी जिंदगी के लिए। ये नहीं कि हम लोगों ने we have given them everything that they wanted, we have given them education, we have given them all the kind of comfort that, but then are we even making them accountable? So shouldn't youth be accountable in what they are doing? Your take on this, please. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मतलब कि आप अपना आईना तो अपने साथ लेके चलें। और मसला ये है कि आईना तो सबके पास होता सबके पास है, लेकिन सवाल ये उसकी डायरेक्शन क्या है। वो Exactly. डायरेक्शन आपकी तरफ होनी चाहिए। चमक Yes. जिसने चमक दुनिया की तरफ कर दी उसके अपने सामने जंग आ जाएगा। आईने की एक साइड चमकदार है, एक साइड जंग है। तो उमूमन लोगों ने आईना ऐसे पकड़ा होता है कि दुनिया को वो चमक दमक दिखा रहे होते हैं, अपनी तरफ जंग होता है। इसको अगर आप ऐसे कर लेंगे तो मामला हल हो जाएगा, फिर आपको दुनिया भी नजर आएगी और चमक आपके चेहरे पे उसकी पड़ती रहेगी, तो आपका रुख रोशन दुनिया के सामने रहेगा, अकाउंटेबल भी आप रहेंगे। वेरी मच, वेरी मच। इनको अकाउंटेबल बनाने में माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है। I believe that responsible parenting is one of the most important things in today's world. It was in yesterday's world, मगर यह है कि पुराने जमाने में हम लोगों को जैसे पाला था, the way we were brought up was entirely different, because the kind of challenges our parents had were very different. मगर आज के जमाने में फी जमाना जो challenges पेरेंट्स के सामने हैं, जो पेरेंटिंग को लेके और जो बच्चों को है पेरेंट्स को लेके और अपने आप को लेके, बहुत बड़ा है। बिकॉज द वर्ल्ड इज एन ऑयस्टर एंड देयर इज अनफॉर्चुनेट डाटा ओवरलोड फॉर नो रीजन। यानी कि उनके ऊपर जो है इतना ज्यादा डाटा जो है उनके ऊपर, इनके सर पे जो है गिर पड़ रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए। तो किस तरफ जाए ये कंफ्यूजन है, और बहुत ज्यादा जो है ना दिमाग में बहुत ज्यादा डाटा भी लोड हो रहा है, और उसकी वजह से जो है I believe that there is a confusion. How do you think, because I believe that it is very important to be a responsible parent. और आपका, बिल्कुल because you are a scholar and you are into literature, responsible हाँ जी, parenting. बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस हवाले से भी खास मैंने एक वही अपलॉज अदब पे 1 घंटे का लेक्चर हजरत कल के नाम से रिकॉर्ड किया था। वो एक मिसाली किरदार, वो बड़ा अहम है इस हवाले से कि वो आपको उस आने वाले शख्स से और उन बच्चों से रोशनास कराता है कि जिनकी आपको इस वक्त तरबियत करनी है, क्योंकि अचानक ऐसा नहीं हुआ कि ये जो तरबियत का पहिया है ये उल्टा घूमने लगा। यानी कि बेटी बताती है मम्मा व्हाट इज स्कूल, बेटा बताता है कि डैडी व्हाट इज स्कूल। ऐसा नहीं है भाई, आपको उनसे सीखना है। मसला ये है कि दे विल टेल यू। और एक तो ये है कि ऐसा मसला सिर्फ हमारे जमाने में नहीं है, हर जमाने में रहेगा। पिछले दिनों भी मैं ये बात कर रहा था, एक छोटा सा वाकया मैं शेयर करता हूँ, उससे वाजे हो जाएगी चीज। कि जब हमारे घरों में इंटरनेट और कंप्यूटर नया नया आया, और मतलब आपके सामने मैं कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन खुद मैंने इतने चेंजेस देखे हैं हाँ, कि जब कंप्यूटर और इंटरनेट नया नया आया तो रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैं बैठ के लड़कियों से चैटिंग कर रहा होता था। तो कभी जो घर के बड़े थे, वो चाहे वालिद हो, चाहे वालदा हो, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, वो आके कभी चाय रख के जाएं, कभी दूध रख के जाएं, कहें बेटा काम कर रहा है, लफ्जे काम। तो यानी वो कंप्यूटर की टक 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 की आवाज वो काम से रिलेटेड थी, क्योंकि वो जहनों में टाइपराइटर था।
तो ये उस वक्त का चेंज करेक्ट। था। अब इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ भाई, सिर्फ डिवाइसेस चेंज हुई हैं। जंग हमेशा से यही है, कदीम और जदीद की जंग हमेशा से यही है। वो इकबाल का इस जुमरे में शेर है कि हयात एक जहान एक कायनात भी एक, दलील कम नजरी किस्सा कदीम और जदीद। माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक यू, और वो आप हाजिर जवाब हो। और आपका जो है ना, मैं हमेशा जो कहती हूँ कि नो, I've been reading about you and watching you, कि किसी ने अगर कोई चीज कहा हो तो वहां से जो ना पता नहीं कौन से पन्ने से आप निकालते हो आप। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो। मेरे ख्याल से ये भी जरूरी है कि मेरे ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट वी आर सीइंग, क्योंकि इंसान, जैसे आपने कहा कि आईने को जो है ना अपने तरफ जी हाँ, नहीं करता, यानी कि दे आर नॉट जी बीइंग हाँ, वन सेल्फ, अपने आप से जो ना ऑनेस्टी नहीं है, दे आर नॉट बीइंग वन, दे आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स। यानी कि लोग जो चाहते हैं वो हमें बनना है, वो क्या बिल्कुल कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो इस चक्कर में जो है ना मेरे ख्याल से बहुत सारे मारे गए हैं। तो आई थिंक दे ऐसे नीड ही, टू स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स फर्स्ट। यानी कि बिल्कुल सच्चाई जो है अपने साथ सच्चा हो जाओगे तो दुनिया के साथ सच्चा रह पाओगे ना, क्योंकि सच्चाई तो ऐसे एक ही, ही रास्ता है, झूठ के तो हजारों रास्ते हैं। जी हाँ, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, बिकॉज अगेन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, काउंसलिंग, ये प्रोएक्टिव जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस, जो मैं मानती हूँ कि बहुत जरूरी है एक फैमिली में होना, ताकि हमारे बच्चों को जो है ना इल्म हमसे मिले, कोई फलाने से नहीं, कहीं दुनिया से नहीं, कोई और दूसरे लोगों से नहीं, जो हम नहीं जानते कि वो क्या बताएंगे उनको। और बहुत सारी दफा ये हुआ है कि ये बच्चे जो है, बिकॉज दे कैन नॉट टॉक टू पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट हैविंग दैट यूजफुल डिस्कशन, और दैट डिस्कशन, प्रोएक्टिव डिबेट्स एंड डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे उनके सवालों का जवाब कहीं और ढूंढते हैं, जहां वो जवाब जो है गलत मिल जाता है, या कोई उनको बहका देता है, या हमारी अगर बच्चियां हो तो वो बहक जाती हैं, क्योंकि जो सामने वाले जो है, जो जो मुनाफिक होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि ऐसे लोगों को अपने चंगुल में फंसा के जो है ना भटका देना। तो योर टेक ऑन प्रोएक्टिव डिस्कशन, काउंसलिंग, द इंपॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड डिस्कशंस विद योर चिल्ड्रन, ओपन एंडेड डिस्कशंस विद योर चिल्ड्रन। बहुत लाजिम है और बहुत जरूरी है। और चले इसमें हम दोनों तरफ का मार्जिन रख लेते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें तरबियत जो है वो सख्ती से भी करनी, अपने से छोटों को इतना रूम नहीं देना। मिसाल की इसकी इसकी ये है कि आजकल जैसे कि दूसरा ट्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो जो जनरेशन गैप जो कि हर सूरत में रहता है, वो इतना ज्यादा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। उसके जो बरक्स सूरत हाल है जी, वो भी बिगड़ी हुई है और वो भी बहुत खतरनाक है। उस बरक्स सूरत हाल का नाम मैंने रखा है यार अब्बू। यार अब्बू हैं, हमारे अब्बू तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। ये भी गलत है भाई। दोस्त दोस्त होता है, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। तो ये बैलेंस करके हमें चीजों को चलना है। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पहले क्या था कि पहले घरों में डिप्टी नजीर अहमद की मरतुल उरूस, असगरी और अकबरी की कहानियां मौजूद होती थी। बहुत सारी बातें बाप बेटा आपस में बोल के नहीं कर सकते, तो वो किताबें एक्सचेंज करते थे। किताब पढ़ लेता था आदमी और वो बातें हो जाती थी, बातें सामने आती थी। इस तरह आपका वो अदब भी खत्म नहीं होता था और आपकी बात भी पहुंच जाती थी। अब जो है वो दोनों तरफ से मसला है, या तो ये यार अब्बू वाली कौम है, या फिर वो ऐसी कौम है जो अपने बाप से अपनी आम जरूरियात, अपने मसाइल भी डिस्कस नहीं कर पा रही। तो इसमें मयाना रवि बहुत जरूरी है कि बाप को बैलेंस। अपना, जी, बाप को अपना स्टेटस भी पता हो कि मैं दोस्त नहीं हूं, मैं बाप हूं इसका। और उसको ये भी पता हो कि मेरे बेटे के पास इतना रूम भी होना चाहिए कि अगर उसके साथ से कोई बात मसला है तो वो सबसे पहले आके मुझसे डिस्कस करे, बाद में वो दुनिया की तरफ जाए।
लेकिन इस वक्त ये है कि दो एक्सट्रीम्स पे हम जी रहे हैं, या तो इतनी सख्ती है एग्जैक्ट कि जिसमें बात ही नहीं या हो पा इतनी रही है, या फिर यार अब्बू। हाँ, मेरे मेरे घर में एक चीज हुआ था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज अ सिंगल मदर। मैंने दोनों का जो है ना, ये दरमियान का जो है ना, मैंने लिया था। ऑल्दो यस, फ्रेंडशिप जरूर हम्म। था, मगर वो अदब और वो इज्जत का जो दायरा है वो कभी टूटा नहीं, जी हाँ, कभी भी नहीं टूटा। दे वुड कंसिडर मी देयर बेस्ट फ्रेंड, बट दे वुड ये नॉट बहुत जी, डिसरिस्पेक्ट मी बिकॉज दे थॉट आई वाज अ फ्रेंड। ऐसा ही, ऐसा ही। वो नहीं हो सकता, नहीं तो मेरा ये था कि जिस दिन ये करोगे मैं फेंक दूंगी बाहर, यू विल बी विदाउट अ मदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये बैलेंस, एंड आई इस थिंक बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई बिल्कुल ये इस बैलेंस को मेंटेन, भाई बच्चे तो बंदर के भी होते हैं, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल बिल्कुल ये है कि बिल्कुल। आप बना क्या रहे हैं उनको। Yes, 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 very much. और the next thing that I would like to talk about is हमारे माशरों में, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन वेस्ट, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रह चुकी हूँ, मैं काफी कंट्रीज में मैं रह चुकी हूँ, तो ये एक चीज के बारे में जो ना मैं बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगी कि चाइल्डहुड ट्रॉमास, राइट। जी। हमारे जो बच्चे हैं, देर इज एन इम्पैक्ट, यानी कि चाहे वो ट्रेजेडी हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाता है कहीं, देर इज, इतने सारी चीजें हो भी रही हैं दुनिया में, कहीं अर्थक्वेक हो जाता है, दैट इज अ ट्रेजेडी। कहीं देर इज अ फ्लड, दैट इज अ ट्रेजेडी। कोई घर में मर जाता है, किसी का इंतकाल हो जाती है, और देर इज समथिंग एल्स, सम अदर फॉर्म ऑफ एन अब्यूज दैट हैपेंस, जो पीटीएसडी क्रिएट करता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आ, डिसऑर्डर जिसके कहते हैं, वो रह जाता है, जिसकी वजह से नाइटमेयर्स होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। नाउ ये इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए मैं मानती हूँ कि काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बी, समटाइम्स चिल्ड्रन कैन नॉट टॉक टू देयर पेरेंट्स बिकॉज पॉसिबल है कि एक्सटेंडेड फैमिली इज इन्वॉल्व। हम्म। So the importance of counseling and importance of speaking up about these sensitive issues, I believe, is very important, because इसके बारे में नहीं बात करने से the elephant in the room is never discussed, बेशक। and the trauma gets carried and it is impacting relationships. उन बच्चों को जो है ना, आप बड़े ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, शादी करा देते हैं, वो रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं या ऑफिस में काम करने लगते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये जो ट्रॉमा है उसकी वजह से उनकी बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो वो, बिल्कुल। जी have जी, you ever बिल्कुल dealt ऐसे ही। have you ever dealt with students like this, यानी कि आपके जो इस करियर, because I know you have broadcast, you have been part of broadcasting stations, you have been part of teaching, तो आपको कभी ऐसे कोई ऐसे वाकया हो, have you ever come across any incident where you found youngsters disturbed or having this traumatic stress because of which they were behaving a particular way and you were able to help them? मैं वाकया बहुत मजे का शेयर करता हूँ, जिससे ना बहुत सारी बातें वाजे हो जाएंगी, Wonderful. जिससे काउंसलिंग के तरीकेकार भी वाजे हो जाएंगे, कि हम चीजों को सिर्फ एक मोटा सा मुश्किल सा लफ्ज दे के आगे ना बढ़ जाए। काउंसलिंग एक मोटा सा मुश्किल सा लफ्ज है, हालांकि ये आम प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, और बड़ी अजीब मिसाल देता हूँ। ये बल्कि डॉक्यूमेंट्री एक मैं देख रहा था, डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, अगर हमारे व्यूअर सर्च करेंगे तो उन्हें मिल जाएगी। 2 से 3 मिनट लूंगा मैं यहाँ। बिल्कुल। अफ्रीका में अचानक जो फॉरेस्ट रेंजर थे, उनको गेंडों की लाशें मिलने लगी, और गेंडों की लाशें उनको, राइनोस की लाशें उनको ऐसे मिलती कि राइनो की कमर टूटी हुई होती और लाश होती, और उसका सींग भी अपनी जगह बरकरार होता, तो ये भी पता चल जाता कि ये कोई सींग चुराने वाले तो नहीं है। अब रेंजर्स बड़े परेशान कि इतनी हैवी कौन सी चीज है जो राइनो को कुचल देती है। भाई कोई क्रेन आ रही है कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, बड़े परेशान। कैमराज लगाए गए पूरे जंगल में, पूरे जंगल में कैमराज लगाए गए। उसी जमाने में यही था कि ये हाथी दांत की और ये गेंडे के सींग की, इसकी तिजारत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इनका इलीगल शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये जो दांत निकलता है ये हमेशा मेच्योर जानवर का निकलता है, बच्चों का नहीं निकलता। कैमराज लगा दिए सारे जंगल, सारे जंगल में कैमराज लगा दिए, तो एक बड़ा ही अजीब मंजर
उन डेजर्ट उन फॉरेस्ट रेंजर्स ने देखा, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है कि हाथी, बड़े बड़े हाथी जो है वो गेंडों को कुचल रहे हैं। फिर नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, और फिर अच्छा। बहुत सोचो विचार के बाद पता ये चला कि हाथी जो है वो झुंड में रहता है, गोल में रहता है, और हाथी के जो बच्चे हैं, जो छोटे हाथी हैं, वो बड़े हाथियों को देख के सीखते हैं। अब शिकार करने वालों ने दांत के लिए वो बड़े हाथी सारे मार दिए। जब सारे बड़े हाथी मर गए और छोटे हाथी मैच्योर हुए, उनका ब्रीडिंग सीजन आया, तो उन्हें फर्क ही नहीं पता चला कि हाथी कौन है, गेंडा कौन है, उनको जो मिला वो उन पे चढ़ गए। खुदा का शुक्र है कि इस वक्त हमारे कल्चर में हमारे बड़े हाथी मौजूद हैं, जिनको देख के हम सीख रहे हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स कैसे चलाने हैं। अगर हम वो उन बड़े हाथियों को प्रिजर्व कर लें, अपने फैमिली सिस्टम्स को प्रिजर्व कर लें, तो हमें इन मोटे मोटे लफ्जों की जरूरत ही नहीं पेश आई। वेस्ट में क्या हुआ है जी, जो जरूरियात हमें पड़ गई हैं कि फलाना एजुकेशन होनी चाहिए जी, फलाने किस्म की काउंसलिंग होनी चाहिए जी, भाई वो रिप्लेसमेंट है इस बात का कि उन्होंने अपने बड़े हाथी फारिग कर दिए। ये है जी। ये, आपके लिए एक सरप्राइज है। आप ठीक है, अच्छा। आई एम गोइंग टू रीड आउट अ पोएट्री दैट वाज रिटन बाय ले हंट। और क्यों वो पढ़ रही ओ हूं मैं व्यूअर वाह। बिल्कुल मैं बताऊंगी। Abu bin Adam May his awoke tribe one night increase. from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the Lord. "And is mine one?" said Abu. "Nay, not so," replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, "I pray thee, then, write me as the one that loves his fellow men." The Ah, angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light, and showed the name whom love of God had blessed. And lo, Ben Adam's name led all the rest. ha अब ha मेरे ha ha. व्यूअर्स सोचते होंगे कि ये क्यों मैंने पढ़ा। तो हमारे जो कॉर्नर्स विद केएस के हर एपिसोड में हम एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट करते हैं। वी अनाउंस समथिंग अबाउट आवर गेस्ट दैट इज नॉट नोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। The poetry that I read was about a very great saint, Sufi saint who has existed in our times in the past. Ibrahim Abu bin Adham, he is also called Hasrat Sultan Ibrahim Abu bin Adham. He was one of the most prominent Sufi saints of 718 CE, and he was also called Ibrahim Balki as he was the king of Balkh. और ये जो थे शहनशाह होकर भी अपने शहनशाह छोड़ के वो खुदा के रास्ते में निकले थे। He went in the search of God, in the path of God, and he adapted spirituality as his way of life. Maulana Rumi, that everybody knows about, the poet that everybody adores, has exclusively described the legend of Hazrat Ibrahim in his Masnavi. I am extremely proud, I am honored, and I'm very, very grateful that I am having this particular opportunity to announce that the person that you see in this show, Amar Iqbal Saab, his complete name is Amar Iqbal Adham. He is the lineage and the descendant of this great Sufi saint. And we are very, very blessed and we are very grateful.
अब जब हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, जिसके बारे में इट इज अ फैड वर्ड, आजकल फैशनेबल हो गया है ये कहना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। तसव्वुफ के जी रास्ते से मैं भी हुई हूँ, मैं जिनकी दर की गुलाम हूँ मैं, आई वुड से, और जिन गुरु से मैं वाकिफ हूँ, ही इज, आई वुड से, द किंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये तसव्वुफ का जो रास्ता है, ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। और जी स्पिरिचुअलिटी इज फाइंडिंग वन सेल्फ विद इन यू एंड फाइंडिंग द क्रिएटर विद इन यू, बिकम वाह a nobody to become somebody. तो वाह आपका डेप्थ इन पोएट्री, आई बिलीव, is the spiritual journey and the spiritual descent of this great lineage that you have. आपका क्या ख्याल है? और अब thank you so है much for तो letting me announce this. और आपने तो यानी आई एम स्पीचलेस नाउ, ये तो आपने नस पकड़ ली ना फिर, बुनियादें, ये तो यानी जड़ जिसे कहते हैं कि आपने तो जड़ पकड़ ली फिर बातों की, तो यही है। और हाँ, वाकई ये ज्यादा लोगों को अक्सर ना ये बात डिस्क्लोज्ड है, ना मैं नाम के साथ इस्तेमाल करने की जुर्रत हिम्मत करता हूँ, लेकिन बहरहाल जो है सो है। तो ये है जो बातें मैं, बल्कि इस हवाले से अब आपने बात की है, तो जो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा वो बस ये है कि मुख्तलिफ सलासिल की मुख्तलिफ शराइत होती हैं। इस सिलसिले की दो शराइत है जो बज़ाहिर बहुत सादा सी, और वो खुद ब खुद मेरी जिंदगी में तो आ जाती हैं। बाकी कोई अगर इस तरफ ज़ौक रखता है, शौक रखता है, तो उसके लिए दो शराइत। पहली शर्त ये है कि मटीरियलिज्म से, मैटर से कोई रगबत आपकी नहीं रहेगी। आप हमेशा अपने अंदाज से, अपने जिंदगी गुजारने के तौर तरीके से, अपनी चीज से, अपनी बात से ये साबित करते रहेंगे कि ताकत यहाँ नहीं है, कीमत इसकी नहीं है, मैटर की कोई कीमत नहीं। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंसानी शऊर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लफ्ज मटीरियलिज्म को गाली की तरह इस्तेमाल करने लग गए। इतना शऊर तो हमें ओवरऑल आ गया है। बस अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंसान। एक शर्त ये है जी। दूसरी इसकी शर्त ये है कि आप कभी भी मुर्शद नहीं होंगे। जो मुर्शद है, जो मेंटोर है, वो हमेशा सर्व करेगा, आप सर्व करेंगे, आप खिदमत करेंगे, आप खिदमत गुजार होंगे। इसीलिए जो आपने नज्म शेर की, लीन हंट की, उसका भी आखिर यही है ना कि फिर मेरा नाम उन लोगों में शामिल कर दो जो खुदा की मखलूक से मोहब्बत करता है। तो जब उन लोगों में नाम शामिल करने की अगले ही दिन वो फरिश्ता दोबारा नाजिल हो गया, एक दिन, यानी कि एक दिन में कितनी खिदमत कर ली होगी अबू बिन नजम ने, नहीं की होगी ना। सिर्फ नीयत पर, सिर्फ इस नीयत पर वो फरिश्ता दोबारा नाजिल हो गया, ये कह के कि लो हिज नेम लेट द रेस्ट, के सबसे ऊपर आपका नाम है। वो इसी हवाले से एक और नज्म, शायद ये अलेक्जेंडर पोप की है या लीन हंट की है, कि आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइंब्ड द टॉप मोस्ट स्टीपल, गॉड डिक्लेयर्ड गो बैक अगेन, आई ड्वेल अमंग द पीपल। मैंने जब कोशिश की कि मैं खुदा की आवाज सुन सकूं, तो मैं सबसे ऊंचे पत्थर पे चढ़ गया। क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल, अब चाहे उसको आप तूर से तशबीह दें या किसी से, कि मैं सबसे ऊंचे पत्थर पे चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो बैक अगेन, आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं तो तुम्हें लोगों में मिलूंगा। तो बस ये दो शराइत इसका हैं मतलब, कि आप मखलूक के साथ मेहरबान रहें, खुदा आपके साथ, मखलूक आपके साथ मेहरबान रहेगी। यही आपने जो नाम लिया अलेक्जेंडर, सॉरी, लीन हंट का नज्म में है, यही बातें आपको रूमी के पास मिलेंगी, यही बातें आपको जिनकी मैंने नज्म सुनाई उनके पास मिलेंगी। आइंस्टाइन का एक बड़ा मारूफ ऐसे है, द वर्ल्ड एज आई सी इट, उसका भी बुनियाद यही है कि आप थैंक्सफुल रहें। वो वहां पर पेन की मिसाल देता है कि जिस पेन से आप साइन कर रहे हैं, वो पेन 10 लोगों ने बनाया है तब तक आप पहुंचाए। तो यू नीड टू बी be thankful. थैंक्सफुल। Yes. Yes. And one of the most beautiful things I believe, you know, when people talk very loosely about spirituality, tasawwuf के बारे में जो ना
यूं ही एवं बात करते हैं, वो इतना आसान भी नहीं है और हर एक का जो है ना, हर एक की बस की बात नहीं है, और उसके लिए अपने आप को सरेंडर करना होता है। यू नीड टू लूज हाँ योरसेल्फ जी, टू फाइंड जी, जी, योरसेल्फ, जी, जी। हाँ जी। यू नो। फिर वो सो आधा सत्यानाश, अब बल्कि एक चाहे बेहद ये बात हो सकता है कि इस बात से आपका इख्तिलाफ भी हो सकता है सुनने वालों का बहुत इख्तिलाफ हो, तो आधा सत्यानाश तो आखिरी हमारे स्पिरिचुअल रीडर गुरु जनेश ओशो ने किया हुआ है। माजरत, बिल्कुल, माजरत। बिल्कुल, बिल्कुल, माजरत, बहुत माजरत के साथ आप हम ये रियल कहते एस्टेट हैं, का काम बट करें ये ना, है आप कि रियल एस्टेट का काम आपको करना चाहिए, आप इन बातों को न छेड़ें। लेकिन मसला वो ये कि मोटी मोटी बातें करके गुफ्तगू करना बहुत, कायनात का सबसे आसान काम गुफ्तगू करना है। आप मोटी मोटी बातें करके मजमा लगाना, भाई वो जितना मजमा जो है वो गुरु जनेश ओशो ने लगाया है, उतना ही मजमा एक मंजन बेचने वाला बस में लगा लेता है। बस ये है कि ऑडियंस मुख्तलिफ है, उसने टारगेट जो के किया वो किया अपर मिडिल क्लास के लोगों को, जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड थे, जो बेचारे ये थे। ये बेचारा जो मंजन बेचने वाला है वो टारगेट लोअर क्लास लोगों को करता है, लेकिन मजमा दोनों एक जैसा लगाते हैं। सो मामला मजमा लगाना नहीं है, और मजमे से मेरे हटना है। ख्याल से ये नबी है कि पाक पर जब वही आ हाँ, रही है तो उस वक्त आ रही है जब वो मजमा छोड़ के गए हुए हैं। बुद्धा आपको जब पता चल रहा है कि हकीकत कहाँ है, तो उस वक्त है जब वो मजमा छोड़ के गए हुए हैं। मास्टर टाओ को जब लोग मास्टर टाओ मांग रहे हैं, मान रहे हैं, तो उस वक्त मान रहे हैं जब वो मजमा छोड़ के गए हुए। फिर बाद में रश लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो है, आई एम गोइंग टू रिसाइट समथिंग दैट अमर इकबाल साहब हैज रिटन, बिकॉज हम नर्चर लाइफ में जो है बेसिकली हम बहुत ज्यादा बात करते हैं मेंटल वेलबीइंग के बारे में। तो ये खूबसूरत नज्म पे जो ना मेरी, बस मेरा जो दिमाग टिक गया, मैं कहूंगी मेरी आंख टिक गई, मेरा दिल टिक गया, और मैं ये पढ़ूंगी क्योंकि आपने ये कैसे लिखा, मेरा सोच के मैं हैरान परेशान हो गई। आपने इसका जो टाइटल है हेलुसिनेशन रखा है। मैं ओ। अपने बंद कमरे में पड़ा हूँ और एक दीवार पर नजरें जमाए मनाजिर के अजूबे देखता हूँ, उसी दीवार में कोई खला है। मुझे जो गार जैसा लग रहा है वहां मकड़ी ने जाल बुन लिया है, और अब अपने ही जाल में फंसी है, वहीं पर एक मुर्दा छिपकली है। कई सदियों से जो साकित पड़ी है, अब उस पर काई जमती जा रही है, और उसमें एक जंगल दिख रहा है, दरख्तों से परिंदे गिर रहे हैं, कुल्हाड़ी शाख पर लटकी हुई है, लकड़हारे पे गीदड़ हंस रहे, मुसलसल तेज बारिश हो रही है, किसी पत्ते से गिरकर एक कतरा अचानक एक समुंदर बन गया है। समुंदर नाव से लड़ने लगा है, मछेरा मछलियों में गिर गया है, और अब पतवार सीने से लगाकर वो नीले आसमान को देखता है जो यकदम जर्द पड़ता जा रहा है। वो कैसे रेत बनता जा रहा है, मुझे अब सिर्फ सहरा दिख रहा है, और उसमें धूम की चादर बिछी है, मगर वो एक जगह से फट रही है। वहां पर एक साया नाचता है, जहां भी पैर धरता है वहां पर सुनहरे फूल खिलते जा रहे हैं। ये सहरा बाग बनता जा रहा है, और उसमें तितलियां दिखती हैं, परों में जिनकी नीली रोशनी है वो हर पल तेज होती जा रही है। सो मेरी आंख में चुभने लगी है, सो मैंने हाथ आंखों पर रखे हैं, और अब उंगली हटाकर देखता हूँ कि अपने बंद कमरे में पड़ा हूँ, और एक दीवार के आगे खड़ा हूँ, एक दीवार के आगे खड़ा हूँ। हाउ डिड यू इवन हाउ डिड यू इवन राइट दिस hallucination? How did you write this? Because when we're talking about hallucination, it can be multiple things. When we talk about schizophrenia, we are talking about split personality disorders. We are talking about psychological. I mean, it is amazing. How did this come about, or when did you write it? हम्म। दो 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 बातें हैं इस बारे में। एक तो इसका जवाब है कि हाउ डिड यू राइट इट, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। और दूसरी बात यह है, जो जिस तरीके से आपने कहा ना कि हेलुसिनेशन है या पैरानोया है या स्किज़ोफ्रेनिया है, इस बारे में
सिर्फ एक बात तमाम सुनने वाले अगर याद रखेंगे तो वो बड़ी ताकत और बड़ी कुव्वत देगी। ये जितने ये डिसऑर्डर्स हैं, जितनी ये बीमारियां हैं ना, यही ताकतें हैं, यही कुव्वतें हैं इंसानी दिमाग की। ये एक एक्स्ट्रा कुव्वत है जिस 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 जो आदमी इनसे सफर करता है उसकी एक एक्स्ट्रा ताकत भी यही होती है, बस के उसको इस पर काबू करना आ जाए। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे कि वो नज्म पेश की आपने कि मैंने कैसे लिखी, मैंने ऐसे ही लिखी जैसे शेक्सपियर ने कहा था, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ ब्यूटी। जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही मैंने कह दी। Beautifully written, because it describes a whole lot of things. The depth with which you have written is amazing, amazing. And इस पर जो है बिल्कुल मैं कभी और हम तफसील से बात करेंगे, जी लंबी जी, गुफ्तगू होगी। मगर बिल्कुल। अब अगर आप आए हुए हैं और आपने बजूका हमें नहीं सुनाया है तो मैं कैसे माफ हाँ, करूंगी आपको, तो बजूका सुना दे। मैं पेश करता हूं कि बजूका तन्हा है, बजूका डरता है, बजूका घास फूस का जिस्म संभाले, काले कौवे पर मरता है लेकिन बोल नहीं सकता है, उस पर है सत्ता तारी, निराला इश्क हो जैसे भूसे के एक ढेर पे जलता सिगरेट चिंगारी, बजूका जलता है। बजूका जलता है और फटे कोट की जेब हवा से भरता है तो हंसता है, सब आसपास के फूल कपास के सूंग सांग के बंजरपन के बीच बदन में बोता है तो रोता है, सब खेत उसी का है वो फिर भी नंगा है, बजूका कंगला है। बजूका कंगला है पर हवा चले तो झूम झूम के, घूम घूम के, नींद में कोई रक्स कहीं फरमाता है और जाग नहीं सकता, बजूका दंग खड़ा एक जंग लड़ा करता है जिससे भाग नहीं सकता, बजूका लंगड़ा है। बजूका लंगड़ा है और अंधा है और भूखा है पर गीत उसी के गाता है जो उसकी आंखें नोच नोच के खाता है, चिल्लाता है पर थोड़ी भी आवाज नहीं करता, बजूका गूंगा। बजूके बजूके आग लगा उस खेत को जिस पर बस कौवे पलते हों, यूं ही काए काए करते हों, तुझसे झूठ मूठ डरते हों, तू क्यों डरता है, बजूका तन्हा है। ये क्या है जी। बात, क्या बात। Why, where was this inspiration from? Why a scarecrow? I know that the scarecrow is not exactly the scarecrow that you're talking about. जिस बजुके के बारे में लिखा है वो बजुके के बारे में आपने नहीं लिखा है। मुझे लगता है बता कि दो। ये बजुका जो है इंसान है। बता दो। Am I correct? हाँ जी, बिल्कुल, Correct? बिल्कुल ऐसे ही क्या बात है। इंसान है, मोस्ट अब प्रिसाइसली ये मर्द है। यस, इंसानों में भी ये बिल्कुल ये मर्द है, ये हर घर का मर्द है। यस, यस, क्या बात है। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। नाउ when we are coming towards almost the end of it, your advice to our audience, because जस्ट you are a psychology expert, what would be your advice that you would want to give to our audience, your our youth, यानी कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो आवाम है, जो आपके फैंस हैं, आपके व्यूअर्स हैं। तो अच्छा, एक एक नस तस से मस और बस का आया हुआ है जी, अच्छा, मैं सुना हाँ, ही दें क्योंकि रंगुरस हमारे की व्यूअर हवस ने पूछा और है। बस, मसाला दस्तरस और बस, और उसके यूं बाद जो है बुनी ना, है यू कैन गिव, हाँ वो, रगें जिस्म की, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस, और सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। क्या बात ये है।
बहुत बहुत शुक्रिया ये सुनाने के लिए। नाउ द एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर पेरेंट्स एंड गिव टू पेरेंट्स एंड द ऑडियंस, और उसके बाद आपके पास एक बहुत मुश्किल काम हम देने वाले हैं। कॉन्वर्स टू केस में एक हमने एक रस्म रखा है कि यू विल आस्क द होस्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एडवाइस दे दें और उसके एडवाइस, बाद जो हाँ जी, क्वेश्चंस जो पूछने वाले हैं, इंटरेस्टेड। एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट है। एडवाइस तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, उस बात को वैसे ही रखें कि भाई आईने की डायरेक्शन चेंज कर लें। एडवाइस यही है कि आईने की डायरेक्शन चेंज कर दें। एक तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो बात हमारी हमेशा नौ परस्ती के हवाले से, स्पेसिसिज्म के हवाले से रहती है कि यार एक साइड पकड़ो, भाई एक साइड पकड़ो। अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है तो फिर पूरी डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दो। फिर ये फेमिनिज्म के नारे नहीं लगाओ, फिर ये ब्लैक राइट मूवमेंट के फिर ये नारे नहीं लगाओ, फिर पूरी खत्म करो। या तो सब बराबर है, या तो सब बराबर हैं, या फिर ग्रेडिंग है, एक साइड लगे। अब हम दूसरे जबरदस्त। दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं कि जो मुझे सवाल करने। अब तक यकीनन जिस तरीके की आपने गुफ्तगू की, बेहद मजा आया, बहुत खुशी हुई, और बड़ी आपकी मोहब्बत की, इतनी तवज्जो से आपने चीजों को देखा। और यकीनन फिर जितने लोगों से आपकी गुफ्तगू रही होगी, बहुत सारे मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से आपकी गुफ्तगू रही होगी। भांत भांत के आपने रंग रंग के लोग देखे होंगे। उनमें एक मुझे ये बताइए कि एक कॉमन फैक्टर आपको इस दौर के इंसान का क्या नजर आता है, कि जो हर एक में है, चाहे वो कोई परफॉर्मिंग आर्ट वाला है, चाहे कोई वो लिटरेचर वाला है, चाहे कोई शायर है, अदीब है, मुफक्किर है, कौन है, कि फर्क नहीं पूछ रहा मैं, कि एक कॉमन फैक्टर आपको क्या नजर आता है कि यार ये एक बात सब में एक सी होती है। एक तो आप ये मुझको बताइएगा कि ये आपका यानी कि जाती। कोई भी हो। जी हाँ, आर कोई यू भी हो, आस्किंग अबाउट जितने लोगों से अब एनीबॉडी तक दैट? आपने गुफ्तगू की, वो अलग अलग मुख्तलिफ लोग होंगे। उन मुख्तलिफ लोगों में कौन सी बात कॉमन है, एक कॉमन फैक्टर कौन सा आपको नजर आया? एक सवाल तो मुझे ये मेरा लगा कि हाँ, ये एक सवाल आपसे के लिए ये जो है। मैं ये जवाब दूंगी कि हर किसी का मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने इस तरीके से जो है ना मैंने नहीं पाया, बहुत कम है, मगर मैं हाथ में गिन सकती हूँ। मगर अगर देखा जाए तो मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है और जिंदगी का जो ये जर्नी है, इसमें एक चीज जो है ना मैंने कॉमन पाया हर एक में। हर एक जो है अंदर से मर रहा है, अंदर से दे ओह। आर सैड, अंदर से दे आर डिससैटिस्फाइड, और अपने ही हम्म। रैट रेस में ट्रेडमिल के ऊपर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, न जाने कहां पहुंचने के लिए, कहीं पहुंचते नहीं है। बस ट्रेडमिल कह रहा है कि हमने 200 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, 10 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, 15 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, मगर कहीं भी नहीं गए, वहीं ट्रेडमिल पे हो। जिंदगी की उस ट्रेडमिल में फंसे हुए मैंने देखे हर किसी, क्योंकि वो वाह। न अच्छे। जाने क्या ढूंढ रहे हैं, वाह। वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश नहीं कर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक बात सब में कॉमन आपको और मिली। हर कोई नाखुश, हाँ नाखुश है, अपने आप से नाखुश है, दुनिया से नाखुश है, अपनी चीजों से नाखुश है। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कोई सरेंडर ही नहीं कर रहा। हम्म। यार अपने आप को किसी के हवाले तो कर, तो सब कुछ पालोगे। हाँ, मगर ऐसे वो ही। कैसे करूं, ईगो है, मैं कैसे कर लूं, मैं कैसे सर झुकाऊं। सर झुकाओ तो ये कायनात पाओ, सर उठाओगे तो कायनात को खो दोगे। तो सर तो झुकाओ अपने आप को। ह्यूमिलिटी ऐसे इज ही। समथिंग आई थिंक इज अ ह्यूज थिंग। एवरीबॉडी आई फील वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट दे डोंट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। भागते जा हम्म। रहे हैं बस रैट रेस। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा और फिर जो आप ये बताएं कि हाँ, 8 बिलियन लोगों से आपने अपने आप को कैसे मुख्तलिफ पाया?
मेरी एक दीवानगी है। 8 बिलियन लोगों में से मुख्तलिफ मैंने इसलिए पाया क्योंकि जब से मैं 2 साल की बच्ची हूँ, मुझे ईमान से ईमान है, ईमान पर ईमान है, ईमान से जीती हूँ और ईमान पे, अपने ईमान पे अमल करने की कोशिश कर रही हूँ। आई गॉट ग्रेट फेथ इन द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स सिंस आई वाज अ 2-year-old चाइल्ड। वो कहाँ मैं पैदा हुई, कहाँ जिंदगी लेके गई, किन से मैं जुड़ी, वो सारी बातें अलग, मगर किसी भी तरीके से जहां मैं पैदा हुई, जहां मेरी तरबियत हुई, मेरी माँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, शी वाज एन अमेजिंग human being. My mother was one of my greatest gurus. My first guru in my life was my mother. Okay, I lost her at 16 and she taught me have faith, and have faith that is totally unconditional. ऐसे नहीं है कि मैंने जो है खुदा के घर पे जो है मैंने जाके कहा कि या अल्लाह, हो भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी, मैं तुम्हारे लिए अभिषेक कर दूंगी, कभी नहीं होता। हम कौन होते हैं किसी को कुछ दुनिया बनाने वाले को मैं क्या दूं? So my faith, I think, has been the strongest and I never give up on life. मैं कभी हार मानती ही नहीं क्योंकि मुझे मेरे ईमान पर ईमान है। I have so much of faith in the powers of the universe and the positive thinking and faith with which the creator has created, कि मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ी मकसद के लिए उन्होंने इस दुनिया में भेजा है और जब तक वो खत्म करूंगी तब तक ना मैं मरूंगी, ना मैं हारूंगी, ना मैं गिव अप करूंगी। मुझे कोई बिजनेस नहीं है हारने का। तो आई फाइंड माई सेल्फ टू बी ए ह्यूज फाइटर एंड मुझे बहुत 6th स्टैंडर्ड में मुझे बताया गया कि अपने आप को डिस्क्राइब करो। तो हर किसी ने कहा शेर है तो पीकॉक है तो कुछ और है, मैंने कहा स्प्रिंग। टीचर ने पूछा स्प्रिंग क्यों? मैंने कहा जितना तुम दबाओगे उतना हायर with resilience I will bounce back up. So I think that is my capacity. I never give up. And मुझे जिस ईमान पे ईमान है उससे कोई मुझे हटा नहीं सकता और मैं बहुत फियरलेस हूँ और हर बार what I believe in is what I believe in, it is my business. What I believe in, जिस पे मुझे फेथ है और जिस पर मेरा ईमान है वो मेरा बिजनेस है, किसी और का नहीं। तो हमेशा ये होता है डर के मारे जो ना कोई कहते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो। मैं मस्जिद चली जाती, मंदिर चली जाती, चर्च चली जाती और घर पे बहुत प्रॉब्लम है, कहती आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई विल गो बिकॉज आई हैव फेथ इन गॉड and that's all that matters. And for me I think my faith that is the strongest and I find it to be unquestionable and I never give up. I never ever give up and I love people. मुझे इंसानों से बहुत प्यार है, बहुत बेहद मोहब्बत है इंसानों से, क्योंकि इंसान जो कर सकता है कोई कुछ नहीं कर सकता और इंसानों के लिए जो करना चाहे वो इंसान में बनना चाहती हूँ। इंसानों के लिए मुझे जीना अच्छा लगता है और इंसानों के लिए मरना भी अच्छा लगता है। So I want to live for humanity. I always, even as a 2-year-old child, I wanted to leave a legacy behind. और मैं कहती थी कि मम्मा मैं कुछ कर गुजरूं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पैदा हुए, पले बड़े, पढ़ाई की, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, पोता पोती हो गए, मर गए। कितना बोरिंग स्टोरी। So I think I am very different because I'm very focused and I'm very single-minded in my devotion towards anything. अगर मैंने यकीन किया है तो यकीन किया है और अगर ईमान है तो उसका अमल भी करने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, इंसान हूँ, खता का पुतला है, तो कोशिश जरूर है। I try to put a smile on everybody's face. I try to see people happy. I try to do something for someone every single day. और मैं अपने आप को मैंने पाया है। वाह। मैंने अपने आप को हार के मैंने बहुत कुछ जीता है। एक दुनिया जीता है अपने आप को हार। और मुझे वो वही बात। That is what it is. Thank you for such lovely questions. मैं किसी ने ये कभी पूछा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं पूछा है। Nobody has ever asked me a question like that. Thank you so much. सबसे ज्यादा मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आप इतने मौजूद हैं and for allowing me to reveal that one thing that you belong to such a great legacy.
और आपने बहुत उस बहुत लेगेसी बरकरार रखा है। बेहद खूबसूरती से आप लिखते हैं, यूं ही लिखते जाएं। मालिक आपको मजीद बुलंदियां अता करें, कामयाबी, कामरानी सब कुछ आपके नसीब में हो, और यूं ही शादो आबाद रहें आप। बहुत बहुत दुआएं हैं आपके लिए। बस जी, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। आपका शुक्रिया। फराह साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लायक समझा, प्रोग्राम अरेंज किया। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स हु जॉइंड। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। हमारे इकबाल साहब को सुनने के लिए, सराहने के लिए, हमेशा ऐसे ही उनको सराहते रहें, उनको अप्रिशिएट करते रहें, ताकि वो इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़में, गज़लें और इतनी खूबसूरत इल्म को हमारे साथ बांटें। क्योंकि इल्म बांटने वाले आजकल बहुत कम हैं, इल्म बटोरने वाले किताबों से बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इल्म बांटा करें तो मजीद मेरे ख्याल से इंक्रीज होता है। सो stay blessed everybody. Thank you very very much, and we will be seeing you again in the next episode with Dr. Biman Saiki. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.